we will continue our previous chapter, that is grammar. It is third part, so I'm writing P3, means part 3. This is for class 10th, but again to remind you, class 9th, 11th and 12th student or any student of any class may also take advantage of these sessions. So dear students, in the previous 2 sessions, we discussed about the different names of words in a sentence. What grammatically names are given for the words in a sentence. Suppose there is a sentence of 1, 2, 3, 4 or 5 words. In those 2 or 3 or 5 words, we classify those words under the different names. We call them parts of speech. There we also studied what is noun, what is pronoun. So we also come to know what is verb, but only on the basics of these things. We did not go into the depth because that is a subject of your previous classes. So today we will discuss again, we will continue that subject verb pattern of a sentence. This subject verb pattern is the key of any sentence. If you understand this subject verb pattern, you can understand the grammar, you can write the English, you can write, you can read, you can understand. यही बेसिक है ग्रामर का, एक सब्जेक्ट और वर्ब का एक जो कॉम्बिनेशन है, जो एग्रीमेंट है. ये क्या होता है? सब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. वी डिस्कस कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है. हमने डिस्कस किया था नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, pronoun can be subject and others. I had put again the question mark because in future we will discuss this subject with other than noun and pronoun. So it means we have understood what sort of pronoun we use as a subject, and if there is an object in the sentence, then the same noun, pronoun and others can be used as object as well. So the other day we discussed about the case of pronoun. It was very important and I had given you homework on that to make a sentence of different cases like I, my, me, you, your, you. So we have learned all these things. Today what we are going to learn, it is verb. This is verb. If I write verb, so what is the verb? Is also explained. Verb is an action. If any action is being done by the subject, that is verb. अब ये action verb क्या है? देखिए, बिना एक verb के कोई sentence हो ही नहीं सकता. There will be a verb, there will be an action, and there will be an agent. इस agent को हम show कर सकते हैं और ये hidden भी हो सकता है. But a subject will be there, an agent will be there, and a verb will be there. अब मैंने कहा थोड़ा देर के लिए go. So it means the subject is hidden. You go. Obviously, if I'm saying go, I'm not saying to myself. I'm not saying the person who is not present there. I'm saying the person who is listening to me, and that is you. तो वो hidden एक subject है. Verb जरूरी है. बिना वर्ब के सेंटेंस ना तो समझ में आएगा, ना फ्रेम करने में आपको किसी तरह की सहूलियत हो पाएगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ब. अब जब हम वर्ब को ग्रामर की बुक में देखते हैं तो हमारे बहुत से नाम आते हैं. मैं उनको लिखता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं. यू हैव हर्ड दीज वर्ड्स. मेन वर्ब, एक आता है मेन वर्ब, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बोलते हैं लाइक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फॉर्मल वर्ब, इनफॉर्मल वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स. Means different sort of verb we learn when we see the topic verb, and there are more. So today we will discuss this verb and we will try to clear these confusions.
अगर एक्शन एक हो रहा है तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत क्या है? Why should we understand these all type of verb if there is a single action? इसका एक सबसे आसान तरीका है कि इस वर्ब को हम क्या देखते हैं, we just relate this verb with two things. ध्यान से सुनिए, we relate the verb with two things. One is with the subject and second one is with the time. If the verb is related with the subject, subject माने जो उस एक्शन को कर रहा है. Suppose I am writing, I am writing. So एक्शन क्या है? Writing. और उसको करने वाला एजेंट कौन है? I. ध्यान से सुनिए, I am writing a letter. So एक्शन क्या हो रहा है? Writing. Who is writing? I. Agent कौन है? I. So there is a relation. So when I relate this verb with subject, then I see helping verb, then I see auxiliary verb, then I see modal verb. अब इसको थोड़ा सा अभी मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डिटेल में. इफ यू नो इट इज वेरी गुड, इफ यू डोंट नो देन यू विल बी टॉट व्हेन दीज टॉपिक्स विल बी टॉट सेपरेटली आफ्टर द टेंस. अब इसके बाद सेंटेंस और फिर टेंस पे हम जाएंगे. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, अब हम सेंटेंस को एनालाइज कर रहे हैं, उसके फ्रेम को, उसमें वर्ब को, जो स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब का जो रिलेशन है, बिना उसको समझे टेंस समझ में नहीं आएगा. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स. तो हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि जो वर्ब है उसके दो रिलेटिव्स हैं. एक रिलेटिव कौन है? सब्जेक्ट. और दूसरा रिश्तेदार कौन है? टाइम. तो इफ आई सी द सब्जेक्ट, द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन ये किसको डिटरमिन करेगा? हेल्पिंग वर्ब को. विच हेल्पिंग वर्ब द सब्जेक्ट फॉलोज, ये करेगा मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब को. एंड दिस ऑल्सो डिटरमाइन टू सम एक्सटेंट, फुली तो नहीं, जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बट आई एम राइटिंग हियर ऑक्सिलरी वर्ब सेपरेटली. तो इफ आई सी द रिलेशन ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, तो क्या क्या चीजें हुई? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा एक की है, ये टाइम में भी एंगेजमेंट रखती है. आगे देखेंगे टेंस में कैसे रखती है. अब टाइम पे आते हैं. टाइम में क्या है? टाइम में स्पेशली वी यूज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और वी कैन से द फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं. First form, second form, third form. So these different forms are used in the time. Time का मतलब tense से है. So अब ध्यान से सुनिए, subject verb था, इस verb को हमने relate किया एक तो agent से, the person who is doing the action, और second किससे किया? Time से, that is tense. Now the point is, what is used when the action or the verb is related and has a you can say the relationship with subject. Subject के साथ जब वो agreement पे आती है तो क्या यूज करेगी? सब्जेक्ट देखेगा हेल्पिंग वर्ब में कौन सी करूं. हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो सपोज फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3, एक हेल्पिंग वर्ब में कोई भी मैक्सिमम 3 टेंस में है. लाइक एक भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब, कुछ टेंस में एक होगा, कुछ में 2 होंगे, कुछ में 3 होंगे. जहां एक होगा, फर्स्ट सिंगल होगा, वहां पे क्या करेंगे? ऑब्वियसली ऑल द सब्जेक्ट्स विल यूज दैट सिंगल हेल्पिंग वर्ब बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. इन सम टेंसेस, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो कुछ टेंसेस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगी? 2 होंगी. तो
we will use according to the need of the subject. सब्जेक्ट क्या होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करें, वो हम टेंस में देखते हैं. एंड थर्ड, अगेन इफ देयर इज 3 helping verb, I should write 1, 2, 3. 1, 2, 3. अब फर्स्ट है तो कोई ऑप्शन नहीं है, सारे सब्जेक्ट उसी को यूज करेंगे. जैसे did, he did not come, I did not come, you did not come, they did not come. No other option in that tense. कहीं 2 है, like do, does, was, were, has, have. So we will be specific there. उसको हम डिटेल टेंस में पढ़ेंगे कि कुछ सब्जेक्ट हमारे ये वाला यूज करेंगे, कुछ सब्जेक्ट ये वाला यूज करेंगे. सो इफ देयर आर 2 helping verbs, so which helping verb will be used in a particular sentence will be determined by the subject. Got the point? Now going to the third, if there are 3, then again if there are 3, then options are not there. It means it doesn't mean that there are 2 or 3 options. It means that every subject has a particular helping verb. वो उसी को यूज करेगा. He is going, I am going, they are going. So these are 3 different helping verbs and we are using them according to the subject. ये helping verb किससे रिलेट होगी? सब्जेक्ट. अब आते हैं मॉडल वर्ब से. तो हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल में आगे जाएंगे. यहां भी पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है. इज, एम, आर, was, were, do, does, has, have, did, had, was, were, and will shall also be considered as helping verb, though nowadays it is being used as auxiliary verb. अब ये मॉडल वर्ब्स क्या है? ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर मोर और लेस सेम. These are more or less same. So modal verbs are different. अब ये modal verbs क्या होती है? ये भी अगेन किसको डिपेंड करती है? सब्जेक्ट. और अगेन टेंस में भी इनका रिलेशन रहता है. एवरी वर्ब इज रिलेटेड. अब ऐसा नहीं है कि इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है तो टाइम से नहीं है. दीज आर इंटर रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू सब्जेक्ट, बट दे आर ऑल्सो हैव सम रिलेशन विद टाइम. क्योंकि ये जो वर्ब है, दीज आर द वर्ब पार्ट ऑफ दिस मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है उसके ये पार्ट्स हैं, ये मेन वर्ब है. सो अब मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स आर सिंपली अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइम एंड द सब्जेक्ट. अब यहां सब्जेक्ट में क्या था? यहां तो टेंस के साथ चल रहा था. यहां टेंस के साथ साथ मॉडल वर्ब्स क्या चलेंगी? यू कैन से द मूड ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मीन्स एजेंट जो एक्शन कर रहा है उसका मूड क्या है. तो डिफरेंट मूड में हम डिफरेंट तरह से बात करते हैं. अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि आई मस्ट गो देयर, अगर खुद को कहता हूं आई मस्ट गो देयर, आई शुड गो देयर, आई कैन गो देयर, आई मे गो देयर, तो मैं अलग अलग क्या कर रहा हूं? अपने मूड्स को डिफाइन कर रहा हूं. अभी सिर्फ इतना समझिए, इनको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे. अभी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द सपोर्ट, ऑक्सिलरी. सो वही हेल्पिंग भी हुआ. सो इन दोनों को हम एक हेड में रख लेते हैं. अब आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पे होता है. एक तो ये हो गया कि जो ऑक्सिलरी, ये सब क्या थे? एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स थे जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करते थे. ये जो दूसरा है टाइम, ये टाइम डिटरमिन करता है जो मेन वर्ब की फॉर्म को. मेन वर्ब है, नाउ आई राइट इट हियर. सपोज आई हैव अ मेन वर्ब, दिस मेन वर्ब, and my main verb is, suppose I can write play, and one more, it is write. Suppose I am doing with these 2 main verb. अब इस मेन वर्ब का एक्शन तो ये है जिसको हम यहां लिख रहे हैं. ये क्या है? दिस एक्शन इज दिस मेन वर्ब. प्ले, राइट, गो, स्लीप, कम, अंडरस्टैंड, राइट, and so many more. Cook, dance, sing. These all are the verb. And this
these are the extra verb. Extra verb means auxiliary verb, means they are used to support these main verbs. Like am playing, I am playing. So am किसको सपोर्ट के लिए लिखा? प्लेइंग को. एम ने क्या क्या चीजें दिखाई? हमारा टाइम दिखाया और क्या दिखाया? सब्जेक्ट दिखाया. एम प्लेइंग, ऑब्वियसली आई. एम प्लेइंग, ऑब्वियसली प्रेजेंटली, द करंट टाइम. अभी अभी मैं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम टीचिंग. सो एम टीचिंग. एम ने क्या चीज की? दो चीज की डिसाइड. एक कौन सी की? आई को. पढ़ाने वाला कौन है? सब्जेक्ट को, इसलिए रिलेशन सब्जेक्ट से हुआ. और दूसरा क्या किया? एम इज यूज्ड फॉर द करंट. एम प्लस प्लेइंग, आई एम प्लस टीचिंग. सो उसने टाइम भी बताया कि करंट टाइम में, एकदम करंट टाइम में वो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट टीचिंग कर रहा है. सो दिस इज मेन वर्ब. सो ये मेन वर्ब में अब इसको, ये इसमें टाइम का अब इसको चेंज कर देती है. जैसे टाइम हमारा शेड्यूल चेंज कर देती है. सुबह का टाइम कुछ और का शेड्यूल है, दिन का कुछ और है, शाम का कुछ और है. ऐसे हम टेंस में टाइम लाइन को पढ़ेंगे और टेंस सीखेंगे. अभी हमने सिर्फ ये सीखना है कि एक्शन का टाइम क्या है. एक तो एक्शन करने वाला कौन है था? सब्जेक्ट. और दूसरा एक्शन का टाइम क्या है? दिस टाइम इज डिसाइडेड और determined by the form of the verb plus auxiliary verb. ये तो है ही auxiliary verb साथ में. इसके साथ साथ यहां पे हम क्या करते हैं? इस verb की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं. अब डिफरेंट फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं? इनको जैसे प्ले है, अब डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं. मीन्स क्या हुआ कि एक तो प्ले हमने कल कर दिया, एक अभी थोड़ी देर पहले किया, एक अभी कर रहे हैं, एक रोज करते हैं, एक पहले शुरू कर दिया था खेलना और आज भी अभी भी खेल ही रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइम ऑफ दैट एक्शन. उस एक्शन के होने का डिफरेंट टाइम है. ऐसी राइट, आई एम राइटिंग, मैं अभी लिख रहा हूं. कुछ पहले लिख दिया था, बहुत पहले लिख दिया था, आगे लिखूंगा और लिख रहा था. देयर आर डिफरेंट टाइम. हिंदी में जो मैंने बताया, ऐसी इंग्लिश में भी एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और द एजेंट. इस सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एजेंट हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन. जो इस वर्ब को कर रहा है वो सब्जेक्ट है. तो वो सब्जेक्ट इस एक्शन को किस टाइम में कर रहा है? अच्छा, हमें टाइम की क्यों जरूरत पड़ती है? टाइम की जरूरत इसलिए पड़ती है, सो टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज दिस, बट व्हेन डिड ही परफॉर्म और व्हेन इज ही परफॉर्मिंग. कब उसने परफॉर्म किया उस एक्शन को. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं टाइम में. सो इस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल वर्ब्स एंड इनफॉर्मल वर्ब्स में उसी की स्टडी होती है. तो इसके हम स्पेशली क्या करते हैं? 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इसके 4 फॉर्म्स इसके लिखते हैं इस मेन वर्ब के. आई शुड राइट इट हियर. 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. 4 फॉर्म्स का मतलब है कि डिफरेंट टाइम में हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म को यूज करेंगे. कैसे? जैसे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, हम इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट फॉर्म को हम करते हैं प्रेजेंट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, राइट, पास्ट फॉर्म. थर्ड फॉर्म को वी राइट पास्ट परफेक्ट या पार्टिसिपल फॉर्म. आई राइट हियर परफेक्ट या पार्टिसिपल भी कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म.
और पार्टिसिपल। मैंने परफेक्ट स्पेशली लिखा है, ये बाद में इसको पूछूंगा मैं नेक्स्ट टाइम पे जब टेंस में जाएंगे। और द थर्ड वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दीज आर द, हमने आसानी से याद करने के लिए क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। So these different forms of the verb tells us the time of action. ये एक्शन किस टाइम में सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो इनकी फॉर्म्स को देखकर पता लगेगा। अगेन इस फॉर्म को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी कनेक्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब एज वेल। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इसका एक बड़ा बॉन्ड है, जैसे केमिस्ट्री में हम बॉन्ड बनाते हैं। Similarly, here we also make the bond. जैसे वहां सब एलिमेंट, सबका इलेक्ट्रॉन का किसी भी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनता है या पर्टिकुलर कंडीशन में बनता है, वही यहाँ भी बॉन्ड जब इसका बनेगा, किस किस का, सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बनेगा। अदरवाइज उनके अपने क्या है, दे हैव देयर डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग फॉर्म है और टाइप है। टाइप क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर्म क्या है, दीज फोर फॉर्म्स। अब थोड़ा देर के लिए हमने अभी पढ़ा प्ले। तो प्ले की तीन फॉर्म हो जाएंगी, प्ले, प्लेड, प्लेड। एक दूसरी वर्ब हमने लिखी थी राइट, तो क्या हो गया, राइट, रोट, रिटन। अब ये मैंने एक बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल, तो वो क्या था, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल में हम कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ईडी करके बन जाती हैं, जैसे प्लेड, और जिसके आगे ईडी लगा देते हैं हम। तो जो ईडी बना के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हो जाती है, वो हो जाती है, उनको कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल वर्ब्स क्या है कि जिसमें रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब्स क्या है, जब हम उनको एक ईडी लगा के बना देते हैं। और कुछ वर्ब ऐसी हैं जो तीनों में फॉर्म चेंज होती हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, सिंग, sang, संग। कुछ ऐसी हैं जो दो में चेंज हो रही हैं, वो कौन सी वर्ब है, वो इर्रेगुलर वर्ब्स, लाइक गो, वेंट, गॉन। कुछ ऐसी हैं जो तीनों में सेम है, कट, 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 सी, सॉ, सीन। तो अब आप लिस्ट बनाएंगे कुछ वर्ब्स की जो ईडी लगा के काम चल जाता है। वी कैन राइट ईडी आफ्टर, एक सफिक्स ईडी यूज करते हैं और वो सेकेंड, थर्ड फॉर्म बन जाती है। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। इस तरह से फिर हम ऐसा बनाएंगे जो तीनों में चेंज होती है, फिर ऐसा बताएंगे जो दो में चेंज होती है, जो ऐसा ढूंढेंगे जो किसी में चेंज नहीं होती है। सो दिस विल बी द होमवर्क। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। दिस डे वी हैव स्टडीड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये वर्ब हम डिटेल में टेंस में भी पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो थैंक यू वेरी मच।